It is a region of cell division. It is a region of cell division. ठीक है? Guys, questions in front of you. I have started with the question solving. मतलब हम start करते हैं. अभी जिनका नहीं हुआ है कोई बात नहीं. अभी यहाँ पर प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ. इफ यू वांट मैं और क्वेश्चंस रूट के भेजती हूँ ताकि आप और उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करो. ओके एंड गेन द कॉन्फिडेंस. आर यू गेटिंग इट? अभी ये वाला तो मेरे साथ सॉल्व कर लो, बट अभी नेक्स्ट जो डीपीपी में डालूंगी ना आज, वो प्लीज आप अपने हिसाब से करने की कोशिश करना एंड प्लीज कंप्लीट इट ऑन टाइम. ओके चलो फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, एवरीवन कैन सी द क्वेश्चन? Yes, miss. Primary root and its branches constitute. From the taproot system. Taproot system. Taproot system. Yeah? Yes, it is a taproot system. कैसे पता चला? You have to discuss. Discuss मतलब हम discuss करते तो हमें पता होना चाहिए कि हमने ये आंसर कैसे ढूंढ के निकाला. On what criteria? It's because Which other name of taproots is primary roots. sorry, Kiran. The other name of नहीं, taproot. adventitious no. How to work out? ये देखो. This root is Adventitious root system it does not show any branches. Fibrous roots itself is adventitious root. तो first और third option चला गया. Fourth option seminal roots. ऐसे कोई type के roots plants में नहीं है. So what answer is left behind with me is taproot system. Guys, did you see how I worked out? आप मुझे Yes. सुन रहे हो? Yes. आप सुनो. DPP जब मैं solve करूँ तो आप सुनना मैं कैसे करवा रही हूँ. ठीक है? चलो. Stilt roots grow from lower node, lower nodes, upper nodes, upper end. It cannot be internode because internode regions permanent tissues के होते हैं. यहाँ पे कोई dividing cells नहीं होते हैं. It cannot be upper node because upper node are very Lower nodes. and yes, so it is lower node. Upper node में से leaves produce होते हैं. Leaves are produced from upper node. So it is lower node. By default, it is lower node. Very good. Chalo, next. Yes, Divya. Okay. I'll keep the chat box also open. Yes. A few millimeter above the root cap is a region of elongation, maturation, meristematic activity, root edge. Meristematic activity. Of course, Meristematic it is activity. written a few millimeter above the root cap. Root cap के ऊपर, few millimeter ऊपर, obviously millimeter पूछा है. Meristematic activity होगा ना. Elongation कैसे होगा दिव्या? Elongation कैसे होगा? Few millimeter above the root cap पूछा है बेटा. Root cap के ठीक ऊपर. But तुम है ना ये few millimeter देखो ही मत. Guys, you don't see this few millimeter. ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है. अब देखो, अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि क्वेश्चन में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो बिना मतलब के डाले हुए रहते हैं, सिर्फ आपको कंफ्यूजन स्टेट में डालने के लिए. बट आइडियली आपको क्या देखना है? द रीजन अबाउट द रूट कैप. खत्म बात. अब रूट कैप के ऊपर क्या आता है? रूट ऑफ जोन ऑफ डिविजन. दैट इज मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. सो द आंसर इज मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. ओके ओके. पर क्वेश्चन 4 मार्क्स दे रहे हो ना आप, जिनका जिनका राइट है. ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स. ईच रॉन्ग आंसर -1. करो, अभी से आदत डालो. ओके और डरने का नहीं, और मन में ये नहीं लाने का कि अरे बाप रे मुझे इतना कम मिल गया, मैं नहीं करूंगी नीट. ऐसा नहीं है. इट्स जस्ट स्टार्ट. होता है. ठीक है. Adventitious roots differ from the taproot primarily in their Place of origin. very good function. तो दोनों रूट का फंक्शन तो ऑलमोस्ट सेम है. पोजीशन वो भी सेम है, बिलो द सॉइल. इंटरनल स्ट्रक्चर वो तो एकदम ही सेम ही है, राइट. चाहे एडवेंटिशियस हो या टैप रूट हो, जो टिश्यू सिस्टम होता है रूट का वो तो सभी का सेम ही होता है. तो 1, 2 and 4 तो नहीं आएगा. इट इज प्लेस ऑफ ओरिजिन. Taproot is originated from the radical of an embryo, and adventitious root origin from the other than the radical. In monocot plants, example wheat, the primary root is short-lived and is replaced by a large number of roots. These roots originate from the base of the stem and constitute the dash. यानी कि ये stem के base में से arise होते हैं, and primary roots Fibrous roots.
Fibrous root. Fibrous roots. Fibrous root. प्राइमरी रूट्स शॉर्ट लिव्ड है, शॉर्ट लिव्ड लाइक यानी कि प्राइमरी रूट्स डेवलप होने के इमीडिएटली रिप्लेस हो चुके विथ लार्ज नंबर ऑफ बंच ऑफ रूट्स विच आर अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. आपको सीधा ये कनेक्ट कर देना है. इन मोनोकॉट प्लांट्स द रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कंस्टिट्यूट. ये बीच का है ना, फिर से आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है. अभी आप सोचने लगोगे अरे यार मिस ने तो वीट के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया और यहाँ पे तो वीट के बारे में दे दिया, अभी मैं क्या करूं. क्या दिया है? मोनोकॉट. और मोनोकॉट में रूट सिस्टम क्या होता है? फाइब्रस. Adventitious आंख roots. बंद करके फाइब्रस रूट्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आंख बंद करके फाइब्रस रूट्स. ये बीच का जो सेंटेंस है ना, ये सिर्फ आपको घुमाने के लिए दिया है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है. समझ में आया? हाँ, ओके. Yes, miss. Okay. Tap root is descending axis that develops from descending. Radical. 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 मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे ये Radical. कि रूट एक डिसेंडिंग पार्ट है जो कहाँ से डेवलप हो रहा है, तो इट इज रेडिकल. यस. हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, प्रीम्यूल ये नहीं आएगा. हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल क्या है? ये एम्ब्रियो के एक्सिस का नाम है जो हम लोग सीड उसमें पढ़ेंगे. सीड वाला जो पार्ट है ना, मॉर्फोलॉजी ऑफ सीड, उसमें पढ़ेंगे. ठीक है. एंड प्रीम्यूल तो हो नहीं सकता. एडवेंटिशियस रूट्स आर दोज अराइजिंग फ्रॉम एनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल. कितना पॉजिटिव लग रहा है ये आंसर, है ना? डायरेक्ट आंसर ये देखो. एडवेंटिशियस रूट्स आर दोज अराइजिंग फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल. फाउंड ओनली इन मोनोकॉट्स. ये भी सही लग रहा है बिकॉज दीज आर फाउंड ओनली इन मोनोकॉट्स, राइट? डाइकॉट में तो नहीं है, क्योंकि डाइकॉट में रहेंगे तो ये उतना स्ट्रेंथ नहीं देगा प्लांट्स को. Found in bryophytes also. Yes, even the bryophytes, which are lower plants, they also produce adventitious root. So all of the above. अभी देखो, अभी इसमें एक ट्रिक है. हेलो एवरीवन लिसन, सिखा रही हूँ कुछ. अभी है ना, मैडम ने, पूजा मैडम ने आपको फर्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ाया, पूजा मैडम ने आपको सेकेंड पॉइंट के बारे में पढ़ाया, लेकिन पूजा मैडम ने आपको थर्ड पॉइंट के बारे में नहीं पढ़ाया. मैंने ये नहीं पढ़ाया कि ब्रायोफाइट्स में भी होता है. मैंने पढ़ाया? मैंने कहा पढ़ाया? मैंने तो पढ़ाया ही नहीं है. बट इट इज अंडरस्टूड कि अगर फर्स्ट और सेकेंड राइट है तो बाय डिफॉल्ट थर्ड भी तो राइट ही है, तो ऑल ऑफ द अबव आएगा ना. व्हेन यू नो दैट फर्स्ट आंसर इज कन्विंसिंग एंड सेकेंड आंसर इज ऑल्सो कन्विंसिंग, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जहाँ पे 1 and 2 दिया हुआ है, ऑल ऑफ द अबव दिया है, तो बाय डिफॉल्ट फाउंड इन ब्रायोफाइट्स इज ऑल्सो राइट. सो ऑल ऑफ द अबव टिक मार्क करना है. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, हाँ, yes, miss. समझ गए ना कैसे करना है? ओके. अभी देखो, जब हम लोग किंगडम प्लांटे पढ़ेंगे तो उसमें ब्रायोफाइट्स के डिस्क्रिप्शन में आएगा एडवेंटिशियस रूट, उसमें आएगा, बट वो कभी थोड़ा टाइम है ना उस चैप्टर के पास पहुंचने में. लेकिन यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है. रूट पॉकेट्स एक्ट एज अ बैलेंसर एंड आर फाउंड इन Free pockets. floating hydro. रूट पॉकेट्स Free floating hydrophyte. बैलेंसर बोला है. अभी बैलेंसर किस में होता है? कौन से प्लांट्स को बैलेंस, जो सॉइल में ग्रोथ है उनको क्या बैलेंस करना रहता है? उन्हें तो कोई बैलेंस करना ही नहीं रहता है, वो तो सॉइल में अच्छा खासा फिक्स्ड है. तो बैलेंस कहाँ पे करना रहता है? वाटर के सरफेस पे. बुद्धि लगाओ, वाटर के सरफेस पे, राइट? तो दीज आर हाइड्रोफाइट्स, दैट इज फॉर श्योर. हाइड्रो यानी कि वाटर लविंग, ये वाटर लविंग प्लांट्स के रूट पॉकेट्स है. अब हाइग्रोफाइट्स तो होगा नहीं, फिक्स्ड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स तो नहीं होगा, कि क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव होगा? बताओ. नहीं. Free floating Yes, hydrophytes. it is free floating hydrophytes. Very Miss, good, very miss good. ये मिस 8th वाला वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? Root pockets. We have studied taproot and we have studied adventitious root. Hiral. दोनों रूट्स में पॉकेट्स नहीं है, रूट कैप है, रूट पॉकेट्स नहीं है. Yes, miss. पॉकेट्स इट्स लाइक अ फ्लैप जो कुछ देर के लिए ओपन होगा फॉर द रूट टू एब्जॉर्ब वाटर, और फिर बंद रहेगा, हमेशा कंटिन्यूअसली बंद रहेगा. ओनली फॉर लिटिल टाइम इन एन एंटायर डे इट विल ओपन द पॉकेट्स फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इट एक्ट एज अ बैलेंसर. बैलेंसर आपको बैलेंस कौन से प्लांट्स में लगता है? जो सॉइल में फिक्स्ड है वो प्लांट्स को बैलेंस करने की जरूरत है, या जो No, वाटर? miss. वाटर. Water. फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स. फ्री मतलब कि फ्रीली, आई मीन दे कैन स्प्रेड वेरेवर दे वांट, नॉट अ फिक्स्ड फ्लो. फिक्स्ड फ्लोटिंग तो होता ही नहीं है ना. आप फिक्स्ड भी बोल रहे हो, आप फ्लोटिंग भी बोल रहे हो, टू ऑपोजिट वर्ड्स तो एक साथ नहीं यूज कर सकते. सो इट इज फ्री फ्लोटिंग. Yes, miss.
Exactly. Thank you. Secondary growth and lateral roots are found in which part of the root? Zone of elongation. Zone of mature cells. Zone of mature Of cells. mature cells. Zone of mature cells. Secondary root and lateral roots are found in which part of the roots? 1 minute. How many of you say zone of mature cells? And please give me the explanation for that. You need to give me explanation. अभी घबरा क्यों रहे हो? अभी दिया है Ma'am. आंसर तो ना उसमें क्या है? Miss, it is the zone of mature cells because the cells, when the cells divide, they will grow into the secondary roots and its branches. Okay. मैम जोन ऑफ मैच्योर सेल्स में सबसे मैच्योर हो गया और फंक्शन अपना फंक्शन करते हैं और बाकी तो उधर ही हो सकता है क्योंकि रूट कैप में तो नहीं होगा, सेल डिवीजन में तो डिवाइड कर रहे हैं, बराबर है। इलांगेशन में पूरा सब एनर्जी ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ में ग्रोथ हो रहता रहा है है, और एग्जैक्टली। साइटोप्लाज्म में सब डेवलप होता है, तो अभी बस मैच्योर सेल्स Very nice explanation by Uzma and Vaishnavi. Superb. Mature cells best आएगा, perfect है. Zone of mature cells. Mature cells, कोमल, maturity हो गई है cells की. The tissues are developed, so now they can produce the branches, ना बच्चा, है ना? They can give the branching system. Elongation में तो सेल का अभी तक ग्रोथ हो रहा है, टिश्यूज तो डेवलप हो रहे हैं अच्छे खासे, तो वो तो कैसे होगा? मतलब वो तो फिर प्राइमरी रूट ही नहीं बनेगा अगर वो ब्रांचिंग देने में लग जाएगा। हम लोगों ने जब मतलब सारे जोन्स किए थे तो उस टाइम हम लोगों ने जब डिस्कस किया था तो आपने बोला था कि मैच्योर सेल्स मतलब जो जोन ऑफ मैच्योरेशन है वहां से रूट वहां पे हेयर्स आते हैं। एपिडर्म राइट हाँ, रूट वहां हेयर से रूट वाले हेयर्स है, निकलेंगे रूट हेयर्स तो है ही, लेकिन वो ब्रांचेस भी तो वहीं से देंगे ना। तो It is उधर से logical. मैम हम लोग ने ये जो किया था जोन ऑफ एलोंगेशन उसमें हम लोगों ने लिखा था राइट कि वहां पे ग्रोथ रहता है एंड ब्रांचेस लाइक द लैटरल ब्रांचेस अराइज फ्रॉम देम। I just assumed the lateral roots. नहीं, lateral roots वहां से नहीं arise होते हैं। नहीं, it is Okay, so always zone from of mature cell only. yes, Okay. yes, absolutely. Okay, Haustoria helps in survival of Parasites. Parasites. पवनी, नींद आ रही है? हाँ, बोलो। Parasite. Parasites. Direct question है. I don't have to use my logic or I don't have to tell you the logic for this. डायरेक्ट क्वेश्चन है. हॉस्टोरिया कहाँ पर फाइंड आउट होता है? मतलब कहाँ, कौन से प्लांट्स, कौन से रूट्स में, कौन से प्लांट्स में? एपीफाइट्स, सैप्रोफाइट्स, ऑल ऑफ दिस नहीं, इट इज पैरासाइट. एपीफाइट्स तो म्यूचुअलिज्म करके प्लांट के ऊपर ग्रोथ है. सैप्रोफाइट्स तो फंजाई है, वो कहाँ से हॉस्टोरिया प्रोड्यूस करेंगे? सो पैरासाइट्स. रीअरेंज द फॉलोइंग जोन एज सीन इन द रूट इन द वर्टिकल सेक्शन. Root hair zone, zone of meristem, root cap zone, zone of maturation, zone of elongation. This is the first one. This first one. C, B, E, A, है? मिस पहले डी आना चाहिए ना, फिर ए आना चाहिए. हाँ, ये तो पर और कोई बेटर ऑप्शन है? हाँ नहीं, पर वो और कोई ऑप्शन नहीं है, बराबर है. हाँ तो फिर ये आएगा, फोर्थ ये आएगा और ये फाइव्थ आएगा, क्योंकि वैसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है बेटा. सी से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट. सी से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है. नाउ सी हियर, अभी देखो आप रूट एयर जोन लो और फिर मैच्योरेशन लो तो भी पॉइंट तो एक ही है ना, या आप मैच्योर लो और रूट एयर लो तो भी पॉइंट एक ही है, राइट? हाँ मिस. चलो, pneumatophores are present in direct question. Mangroves. डायरेक्ट है, मैंग्रोव्स. यू शुड, दैट मींस इस केस में आपको एग्जांपल्स मालूम होने चाहिए. ऐसे वाले क्वेश्चंस में आपको एग्जांपल्स मालूम होने चाहिए. समझ रहे हो? देखा आप लोगों ने? मतलब आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जहां पे डायरेक्ट क्वेश्चंस लग रहे, उसमें आपके एग्जांपल्स और उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. और बाकी सब में जहां पे आपको दिमाग इस्तेमाल करना, वो एनालिटिकल क्वेश्चन हो जाते हैं. रेडिश इज एन एग्जांपल ऑफ, again it's a direct question. Fusiform. Yes, it is fusiform. It cannot be nappy-form. Nappy का मतलब होता है swollen round. It cannot be conical, मतलब broad base and gradually decrease, and it cannot be adventitious. Presence of brace roots. I know many the word same का as tilt roots, right? Yeah. So maze. Yes, it is maze. Exactly. अभी देखो इसमें ना दो ऑप्शन है आपके साथ. देखो दो तरीका है इसको सॉल्व करने का.
बहुत से बच्चे लोग को ब्रेस नहीं पता, तो वो कंफ्यूज हो गए कि अरे यार ब्रेस रूट्स तो हमने पढ़े ही नहीं है। चलो कोई नहीं, हम देखते हैं एग्जांपल्स क्या है। एविसीनिया, यार एविसीनिया तो मैंने न्यूमेटोफोर्स में पढ़ा था, ये तो नहीं आएगा। करेक्ट। एस्परागस, एस्परागस तो फूड स्टोर करता है, ये भी नहीं आएगा। स्ट्रिगा मुझे पता नहीं है। मेस हो सकता है। डिड यू सी मैंने कैसे किया? ओके, वेर यू डोंट हैव एनी नॉलेज, जीरो नॉलेज, आपको कुछ पता ही नहीं है, दिस इज द बेस्ट वे। अभी एक और चीज यूज कर सकते हो जो मैं चाहती हूं कि आप वही करो। ब्रेस इज एन इंग्लिश वर्ड। इंग्लिश में ब्रेस का मतलब क्या होता है? हम लोग ब्रेस लगाते हैं ना अपने दांतों में, होल्ड करने के लिए, उसको पोजीशन पे होल्ड करने के लिए, राइट? उसको स्टिल रखने के लिए, मतलब किसी भी चीज को एक जगह पे खड़ा रखने के लिए वी यूज ब्रेसेस, राइट? तो ब्रेस का मतलब क्या होता है? जो किसी भी चीजों को एक जगह पे खड़ा रख सके, पोजीशन, इट कैन होल्ड द पोजीशन ऑफ एनीथिंग इन वन प्लेस। अभी ऐसे कौन से रूट्स है जो स्टेम को एक ही जगह पे खड़ा रखता है? दैट इज स्टिल्ट रूट्स। एग्जैक्टली, ये वर्ड ना काफी ज्यादा मिलता जुलता है विद द स्टिल्ट, एंड दैट इज व्हाई विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन टिक मार्क मेस। मैं चाहती हूँ आप ये इस्तेमाल करो दिमाग। मेरे पहले वाला जो मैंने सॉल्व किया वो तो बिल्कुल नहीं करना, थप्पड़ खाओगे। हाँ, तुक्का नहीं मारना है हमें, ठीक है? मार सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट अवॉइड। चलो, इन अ जीनस अ मॉडिफाइड रूट बिकम्स मैम ब्रेस रूट्स होते क्या है? स्टिल्ट रूट्स। दूसरा नाम है उसका? नहीं, स्टिल्ट रूट्स का दूसरा नाम है ब्रेस रूट्स। हमने जो स्टिल्ट रूट्स पढ़ा था ना हाँ। मैकेनिकल सपोर्ट में, मेस का, उसका दूसरा नाम है ब्रेस हाँ। रूट्स। हाँ, इन अ जीनस ए। हा हा, अरे ये कितने लोगों ने सॉल्व किया? 15th क्वेश्चन। सब लोग हाथ ऊपर करके दिखाओ, हाथ ऊपर रखना, मैं सबको स्क्रॉल करके देख रही हूँ। ऑलराइट, काफी स्मार्ट लोग हैं। ओके ओके, वेट, मेरा देख के हुआ नहीं है, वेट वेट। ओके ओके, बाकी के लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे, सिद्धि शर्मा, परी, सानिया। चलो ओके गुड, काफी लोगों ने किया है, मतलब ग्रेट। चलो बताओ मुझे क्या किया आप लोगों ने? Yes, मैंने ऑप्शन Option 2 two. anyone can Rhizophora and श्रेया, श्रेया यादव, Second. श्रेया यादव, वाला किया। श्रेया। Yes, ma'am. आप बहुत कम बात करते हो हमसे, ऐसा क्यों? पूजा मैम अच्छा नहीं पढ़ाती हैं? Yes, ऐसा नहीं है। तो बात करो ना, डिस्कस करो ना बेटा। चलो 15th वाला क्वेश्चन आप बताओ, कैसे सॉल्व किया आपने, क्या दिमाग लगाया? मैम एरियल और ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स, तो उसके मेरे को चारों ऑप्शंस में से राइजोफोरा पता था कि, और जो, हाँ मैम, तो फर्स्ट वाले में राइजोफोरा है और सेकंड जो था वो एडवेंटिशियस लिखा था, तो मेरे को उसका ये बैनियन ट्री पता था, तो बैनियन ट्री का साइंटिफिक नाम फाइकस बंगालेंसिस था, तो मैंने उससे किया। वेरी गुड, सो अकॉर्डिंग टू यू द ऑप्शन 2 इज राइट। ओके परफेक्ट है। आपको ए एंड बी रिस्पेक्टिवली ढूंढना है। ए तो आपका नेगेटिवली जियोट्रॉपिक न्यूमेटोफोर्स यानी कि राइजोफोरा है, और मुझे सारे ऑप्शन में ए के पोजीशन में राइजोफोरा दिखाई दे रहा है, ए के पोजीशन में। तो सेकंड पे मैंने अभी तक अपना सिक्का जमा के रखा है। नाउ इन जीनस बी, मॉडिफाइड एडवेंटिशियस एरियल रूट ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड्स। एडवेंटिशियस रूट ग्रोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। एडवेंटिशियस रूट जो ब्रांचेस में से नीचे सीधा जाता है वो तो प्रॉप रूट्स है, एंड दैट इज बीन शोन बाय फाइकस, सो राइजोफोरा एंड फाइकस इज द राइट वन। वेरी गुड, नाइस। रूट्स एसोसिएटेड विद द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर nodular. यू नो बाकी और कोई ऑप्शन हो भी नहीं सकता। एग्जैक्टली। देखो अभी ये मैंने पढ़ाया नहीं है और मेरे को पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। ओके, fusiform, napiform, conical form are for the food storage. Automatically it is nodular root. Brace roots are dash. This option 2. Second. Modified adventitious root develop from the basal nodes of the stem. Okay. Unmodified तो नहीं है, तो third option चला गया. Modified adventitious root developing from any part of the stem, ये भी नहीं है. Modified adventitious root developing from the base of the taproot, ये भी नहीं है. So second option is right, correct. Perfect. Perfect. Question number 18.
Small thin walled cells with a dense protoplasm are found in the region of root, namely. Meristematic region. मैंने इसके कैरेक्टरिस्टिक आपको बताई थी. सेल वॉल काफी थिन होता है एंड न्यूक्लियस का साइज काफी डेवलप्ड होता है, डिस्टिंक्टिव होता है एंड इवन द प्रोटोप्लाज्म इज नॉट, आई मीन इट्स वेरी डेंस. So that is meristematic region. Of course, it cannot be root hair, it cannot be elongation, it cannot be maturation. Chlorophyllus, autotrophic. मेरिस्टेमेटिक में सेल डिवाइड करते हैं ना. हाँ तो डिवीजन के टाइम तो साइटोप्लाज्म बहुत थिन रहता है. हाँ, तो मतलब डेंस साइटोप्लाज्म यानी कि ओनली न्यूक्लियर मटेरियल से डेंस है वो, रेस्ट ऑल मटेरियल्स आर वेरी लेस, यू नो. हाँ. हाँ, थिन वॉल्ड है ना. थिन वॉल इज अ मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिवाइडिंग सेल्स. और रूट हेयर भी तो थिन वॉल्ड है. लेकिन वो स्मॉल नहीं है ना, इट इज इलोंगेटेड, इट इज प्रोट्रूडिंग आउट. हाँ. Yes. Okay. Chlorophyllus autotrophic aerial roots are seen in. Chlorophyllus यानी कि ग्रीन कलर के रूट्स, ऑटोट्रॉपिक जो फोटोसिंथेसिस करते हैं. वैंडा. Yes, it is Vanda. Correct. Yes, it is Vanda. भूल गए? Vanda एग्जाम्पल मैंने कल दिया था. डेंड्रोबियम, ऑर्किड्स, Vanda. परसों के दिन मैंने दिया था, ट्यूसडे के दिन. Vanda, Dendrobium, orchids and Vanda, all these are epiphytic roots. Epiphytic roots. ये फोर्थ वाला किस लिए है? क्या टीनियोफाइलम, ये वाला? हाँ मिस. ये आता है पैरासाइटिक के कैटेगरी में. ओके मिस. और कस्टूटा और ये तो पैरासाइट ही है. तो बचा क्या? आर्चीज और वैंडा. we don't know anything about arachis. we are very sure about the Vanda. तो वैंडा पे आप लगा लो सिक्का. The cells of region of meristematic activity are Very small, thin walled and with dense protoplasm. very small, thin walled and dense protoplasm. Perfect. Very small, thin walled and dense protoplasm. Yes. Perfect है ध्वनि. Perfect है दिव्या. Identify the correct match of the following. मैम rhizophora nematophora. कितना क्लियरली दिख रहा है वो आंसर राइट है करके. I mean, look at when I see all the options are बहुत फटाफट हो जाता है कि हाँ rhizophora nematophora is the right one. यार कितना फास्ट कर दिया आपने. The edible part of turnip. पहले तो turnip का शेप आपको मालूम होना चाहिए. Modified taproot. बीटरूट जैसा अगर शेप होता है. नहीं, बीटरूट जैसा होता है. चलो, अगर आपको शेप नहीं भी पता है, सुनो, अगर आपको शेप नहीं भी पता है टर्निप का, आपने कभी जिंदगी में नहीं देखा है, तो एक बात समझ लो, इट इज अ मॉडिफाइड टैपरूट. ओके, यानी कि एडवेंटिशियस रूट तो ट्यूबरस टाइप का रूट्स बनाते हैं. तो यहाँ पे लिखा होता है टर्निप एडिबल पार्ट ऑफ ट्यूबरस टर्निप रूट्स. तो ट्यूबरस लिखा नहीं तो मतलब मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट नहीं होगा. एंड स्टेम एंड अंडरग्राउंड स्टेम तो आ नहीं सकता. In potato plant, roots develop from Lower nodes of the stem. yes, no. Why do you say lower node? क्यों? एरियल कैसे आएगा? पोटैटो है. हम नॉर्मल रेडिकल वाला ही रहेगा. रेडिकल वाला ही रहेगा. रूट है. आप भूल गए, मैंने आपको बताया था पोटैटो में, अभी जब मैंने स्टेम पढ़ाया, आई टोल्ड यू ना कि उसमें टैप रूट होता है. यानी कि पोटैटो और जिंजर में व्हाट इज द डिफरेंस? पोटैटो हैज अ टैप रूट एंड जिंजर हैज एन एडवेंटिशियस रूट. Come on. Now for this case, you need to remember even the stem part. Okay. You need to remember even the stem part. और मैंने बताया था कि पोटैटो भले ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर रहा है, बट its root system is taproot system. यानी कि एम्ब्रियोनिक रूट नेमली रेडिकल में से डेवलप होता है. इट हैज फ्लावर्स एंड उसके भी सीड्स प्रोड्यूस होते हैं. सो जब फर्स्ट टाइम पोटैटो ग्रो होते हैं तो वो इस तरह से ही ग्रो होते हैं, मतलब उसके रूट्स इस तरह से प्रोड्यूस होते हैं. वेजिटेटिव प्रोपगेशन अलग चीज है, लेकिन नेचुरली जब पोटैटो ग्रो होते हैं तो वो इस तरह से ही ग्रो होंगे ना, बट नेचुरली. Which is a modification of root that provides mechanical support? Ma'am, stilt roots. Of course. ये negatively geotropic है. ये pneumatophores. Velamin roots aerial roots के surface होते हैं. Haustoria हो नहीं सकते, parasitic roots है, तो stilt roots. Very good. Next, identify a rootless plant and entire plant which is represented in the form of
Identify a rootless plant, smallest plant, and an entire plant which is represented in the form of root. All right. मतलब ये अभी जीके टाइप का क्वेश्चन है. दिस इज अ जीके टाइप का क्वेश्चन. आपको पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट प्लांट ऑफ द अर्थ. स्मॉलेस्ट प्लांट ऑफ द अर्थ इज वॉल्फिया. डालो, ये जीके है, ये कोई आपको नहीं पढ़ाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए. इट्स अ जनरल नॉलेज ऑफ बायोलॉजी. एक जीके ऑफ बायोलॉजी का ना एक अलग से डायरी बना दो, उसमें डालो ये लार्ज स्मॉलेस्ट प्लांट ऑफ द अर्थ जो आपके फिंगर टिप्स पे आता है. एक मिनट, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट, इट इज एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट है ये. स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट which is which has a size that can be on your fingertips, like you can take those plants on your fingertips. It is Wolfia. It is Wolfia. The largest flowering plant, hello, the largest flower वाला plant, largest flower जिसका सबसे giant flower है दुनिया में, Rafflesia. यहां पे लिखती हूं, Rafflesia. It is largest flower on the in the world. Okay. Tallest tree, दुनिया का सबसे बड़ा giant tree, it is Sequoia sempervirens, जिसका कॉमन नाम है रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया. रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया, Sequoia sempervirens, redwood of California. It is a gymnosperm. Tallest tree. मतलब पूरे प्लांट किंगडम का सबसे टॉल ट्री. ओके, पूरे प्लांट किंगडम का सबसे टॉलेस्ट ट्री. इज दैट क्लियर? ऐसे और भी जीके देती जाऊंगी मैं, ठीक है, चिंता मत करो, सब कुछ मैं प्रॉपरली करवाऊंगी आपसे, बिल्कुल भी डरो मत और एकदम कॉन्फिडेंट रहो. चलो फटाफट सॉल्विंग करके स्टेम पार्ट पे चले जाएंगे फिर. चलो, तो आंसर हमें मिल गया है, दैट इज वॉल्फिया. मैम स्मॉलेस्ट प्लांट किंगडम में भी याद रखना है क्या? हाँ, ये पूरे प्लांट किंगडम में भी सबसे छोटा है. एंड ये फ्लावरिंग प्लांट है. हाँ, ये एंजियोस्पर्म्स है. मॉडिफाइड अंडरग्राउंड फाइब्रस रूट्स आर, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड फाइब्रस रूट्स, मेज या एस्परागस, स्वीट पोटैटो, मेज एंड एस्परागस. स्वीट पोटैटो, क्योंकि मेज और एस्परागस के रूट्स बाहर है, सॉइल के बाहर है. ओके, और ये अंडरग्राउंड फाइब्रस रूट्स नहीं है, ये बाहर है. स्टिल्ट रूट्स बाहर की तरफ होते हैं ना ज्यादातर, ओनली लिटिल बिट गोज इनसाइड द सॉइल. सो इट इज स्वीट पोटैटो which is a proper underground root and it is modified for food storage. Root developing from plant parts other than the radicle. Adventitious root. The region of root with exogenous appendages, namely root hairs, and endogenous appendages, namely lateral roots, is maturation region. वो root hairs भी produce करते हैं, हाँ, yes ध्वनि, रूट हेयर्स भी प्रोड्यूस करते हैं एक्सोजीनसली एंड एंडोजीनसली लैटरल रूट्स प्रोड्यूस करते हैं. बिकॉज रूट हेयर्स जो है वो आउटर सरफेस का ये है ना, एपिडर्मिस का एक्सटेंशन है, सो उसको एक्सोजीनस कहते हैं. अ पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक प्लांट इज अ पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक प्लांट. Venus flytrap. You should know this. ये जनरल नॉलेज है कि मतलब हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स कौन से? वीनस फ्लाईट्रैप्स, सनड्यू लिखो, सनड्यू SUNDEU, sundew, Venus flytrap, pitcher plant, PITCHER, all these are heterotropic plants, यानी कि carnivorous plants. Can you repeat the names? Yeah, I'll write it down. Ibrahim, I'll write it down. Okay, chalo, last, parasite with the green leaves, an epiphyte with green roots and an epiphyte with green leaves respectively among the following sets of the plants are: parasite with green leaves, an epiphyte with green roots. This option 2 है क्या?
हाँ सॉरी, टीनियोफाइलम जो है ना वो पैरासाइटिक नहीं है, एपिफाइटिक प्लांट है. इट इज नॉट अ पैरासाइटिक प्लांट, इट इज एन एपिफाइटिक प्लांट. टीनियोफाइलम, मेरी इसे गलती हो गई, आई मेड अ मिस्टेक. टीनियोफाइलम इज अ एपिफाइटिक प्लांट, इट इज नॉट अ पैरासाइटिक प्लांट. वो वैंडा की कैटेगरी में आता है. हाँ तो पैरासाइट विद ग्रीन लीव्स क्या आएगा? एविसीनिया पैरासाइट नहीं है, राइट? वैंडा भी पैरासाइट नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही चला जाता है. स्ट्रिगा इज नॉट अ पैरासाइट, इट इज द सॉइल प्लांट लाइक. तो विस्कम इज अ पैरासाइट, विस्कम इज अ पैरासाइट. तो पैरासाइट के साथ ये मैच कर रहा है. एन एपिफाइट विद अ ग्रीन रूट्स टीनियोफाइलम, एंड एन एपिफाइट विद अ ग्रीन लीव्स इज वैंडा. वैंडा जो है वो एक प्रॉपर एपिफाइटिक प्लांट है जो ग्रीन लीव्स प्रोड्यूस करता है. एंड टीनियोफाइलम जो है इट इज एन एपिफाइटिक प्लांट, लेकिन वो लीव्स प्रोड्यूस नहीं करता है, उसका रूट ही प्लांट है. दैट्स इट, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी लीव्स, इट्स रूट इटसेल्फ इज अ प्लांट. मतलब वो रूट जो है वो फोटोसिंथेसिस भी करता है, लीफ का फंक्शन भी करता है, एवरीथिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस लीव्स. सो टीनियोफाइलम आर द वन व्हिच डज नॉट प्रोड्यूस लीव्स. The root itself is representing as an entire plant, and vanda is the proper plant which has a roots and the leaves. So it is second option. Prop roots are Adventitious roots. Adventitious roots. adventitious roots. Very good. Done. Done. Miss, हाँ बेटा. Miss, you told that Tinophilium is a epiphytic with green roots. So Miss, in that previous question, where we take Chlorophyllus and means autotrophic aerial roots. Chlorophyllus autotrophic aerial roots are seen in Chlorophyllus autotrophic aerial. हाँ, यहाँ वैंडा नहीं आएगा, यहाँ पे टीनियोफाइलम आएगा. यस, यहाँ पे टीनियोफाइलम आएगा. Chlorophyllus autotrophic aerial roots are टीनियोफाइलम, not vanda. जो green roots है proper, the green roots, proper green roots are टीनियोफाइलम, and vanda is having epiphytic roots. So some epiphytic roots, so no, some epiphytic roots are green and some epiphytic roots are not green but they are only meant for support. Okay, so vanda जो है वो सेकेंड कैटेगरी में आता है, यानी कि एपिफाइटिक रूट्स विच आर ओनली फॉर सपोर्ट बट कैन नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. एंड सम एपिफाइटिक रूट्स विच आर ग्रीन रूट्स हु कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, दैट कम्स इन द ग्रीन रूट कैटेगरी, एंड वो है एग्जांपल टीनियोफाइलम. आई होप सबने ये नोट डाउन कर लिया. आई होप सबने ये नोट डाउन कर लिया. टीनियोफाइलम है ना? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर टीनियोफाइलम है. यस, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर टीनियोफाइलम है. यस यस. चलो डन एवरीवन. शुड आई मतलब अभी मैं स्टेम पार्ट पे जाऊं? ओके, चलो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर स्टेम. ओके, कल हमने कहा क्या कौन से मॉडिफिकेशंस किए गाइस? वो बल्ब वाला. Exactly, we completed till the bulb part, right? bulb part हमने स्टडी किया था. ये देखो, that is garlic and onion. Everyone, onion is called Allium cepa. Scientific name. And garlic is called Allium sativum. Yes, they both are belonging to the same genus, huh? Allium sativum, सिर्फ species अलग है, और वो species इसलिए अलग है क्योंकि उनका stem का arrangement अलग है. This is in a ring form, and this is wherein all the stem part, that is a club part, is overlapping with each other only with the margins. Okay, तो ये difference के वजह से इनका नाम वैसे रखा हुआ है, species का नाम. But otherwise they belong to same genus. यानी कि इसका इन दोनों का पूरा जो hierarchy है, taxonomical hierarchy, that is kingdom, division, class, order, family, genus, both of them are having same, only species name is different. Okay, कल हमने यहाँ तक किया था, बराबर है? Yes, आगे बढ़े अभी आज. Today we will be studying the fourth underground stem, that is corm.
The fourth underground stem, which is called corm. Corm. What is corm? Again, it is the underground root, underground stem जो food store करते हैं. And जो भी stem, food, जो भी stem या root food store करते हैं, whether it is a root or whether it is a stem, when they store the food, they automatically become fleshy. Okay, तो जब भी word fleshy आता है, समझना कि ये food storage के बारे में बता रहे हैं. Okay, so fleshy indicates storage of food. So whenever any part of the plant is storing food, it becomes quite fleshy. Now this is a short stem, short and stout. Stout means ज़्यादा height में grow नहीं होते हैं. And this has upright thickening. Horizontal नहीं है, vertical thickening है. It is not like ginger that it is horizontal. It is vertical thickening. Okay, that means वो सीधा है, ऐसे upright position में inside the soil. It bear many buds in the axils of scaly leaves. यानी कि उनके covering पे it has many buds which develops into daughter corms. Okay, at the base of the corm there are many adventitious roots which are produced. यानी कि corm जो है वो adventitious roots produce करते हैं. You can say corm as a condensed form of rhizome. Like rhizome horizontally grow होते हैं. अगर उसी rhizome को हम लोग condense करके सीधा कर देंगे, then that will be corm. तो मतलब rhizome और corm में सिर्फ इतना difference है उनके position के ऊपर. मतलब उनका जिस तरीके का soil के अंदर position है, सिर्फ वही difference है. Rhizome is horizontally dorsiventral inside the soil, whereas corm is vertically. It is vertically growing upright position में in a short stout form inside the soil. Is that clear? Otherwise, दोनों के दोनों food store करते हैं. Both of them are storing food. Both of them are covered with scaly leaves. Both of them are having nodes from where the buds are produced, and both of them are producing adventitious root. Difference सिर्फ इन दोनों के बीच में है, वो है position का. Okay, the way they are positioned inside the soil. Please, this is a very important point. Okay, so you can say that the corm is a condensed form of rhizome. Only thing is that it is growing vertically. ये देखिए बच्चा लोग, मैंने क्या examples दिए हैं, and I am sure you are aware of these examples. Arbi, that is colocasia. Zameen kand, amorphophallus. Zameen kand, amorphophallus. There are other examples as well, but ये दोनों common examples हैं. Okay, so ये examples बहुत important है. But the other examples are colchicum, crocus, etc. Colchicum and crocus. Okay, now Arbi, colocasia, which is a very popular plant, and Zameen kand, amorphophallus, it is also a very popular plant. Let me show you. Zameen kand. How many of you are aware about Suran? Suran is called Zameen kand. Yes, this is the corm. Can you see? इसको हम corm कहते हैं, जो हम लोग खाते हैं, इसको हम corm कहते हैं. And these are Arbi. अरबी पे देखो ध्यान से, ये आपको लाइट कलर के लाइंस दिखाई दे रहे हैं अरबी के सरफेस पे, लाइट एंड डार्क बैंड्स. सो ये जितने भी लाइट बैंड्स है ना, दीज इंडिकेट्स नोडल पार्ट. दीज आर नोड्स. एंड जो भी डार्क बैंड्स है ना, these are internodes, and daughter corms जो है वो nodal regions में से आते हैं. Now you can see how it is producing a terminal bud, and it will produce a shoot. देखो उसके terminal bud से ये shoot produce हो रहा है. This is a terminal bud. Yeah, and here you can see a daughter corm is arising. Can you see that? जैसे कि मैंने ये डायग्राम में दिखाया यहाँ पे, daughter corm, that means branches, छोटे-छोटे branches, and this is the main corm, and this is how it produces axillary or terminal bud for producing the new shoot. And this is Suran, Zameen kand. Arbi, colocasia. Okay, done? चलो. हाँ.
डन. चलो, नेक्स्ट इज, नाउ वी कम टू द कैटेगरी ऑफ सब एरियल. सबके पास वो चार्ट रेडी है ना, अंडरग्राउंड, सब एरियल एंड एरियल. गाइस, एवरीवन इज रेडी विद दैट चार्ट ना? अब उसमें देखिए सब एरियल. सब एरियल में वी आर हैविंग 4 टाइप्स: रनर, स्टोलन, ऑफसेट एंड सकर. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, रनर. Runners, I am talking about creepers, the normal grass or the lawn grass जिससे हम lawn बनाते हैं, Centella asiatica, all these are runners. Runners का मतलब होता है they have a narrow green color. Okay, obviously green होगा क्योंकि सब एरियल है, यानी कि वो underground नहीं है और ना ही वो erect है. These are horizontal parallel to the soil but not underground. They are above the soil, parallel to the soil. So these are narrow, green और prostrate. Prostrate यानी कि slightly ऐसे wavy type के branches which develop at the base of the erect shoot. So what happens, जो erect shoot होता है, leafy shoots होते हैं, उसका जो stem होता है that is horizontally creeping above the soil. And stem पे जहाँ पे nodes होते हैं, वो nodes के वहां से adventitious roots produce होते हैं and leafy shoots produce होते हैं. So basically the entire shoot is developed at the nodal regions. So this entire structure is called as crown. What is crown? Erect shoot, leafy shoot above the soil and bunch of adventitious root below the soil together is called crown. And these crowns are developed at the distance, that is at several nodal region of the horizontal stem. यानी कि stem जो horizontally soil के ऊपर run कर रहा है, ओके, जो हॉरिजॉन्टली सॉइल के ऊपर ग्रो हो रहा है, उसके नोड्स पे से ये सारे शूट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. नाउ वंस, लिसन एवरीवन, प्लीज लिसन, नंबर ऑफ रनर्स, बहुत सारे रनर्स अराइज होंगे फ्रॉम ईच इरेक्ट शूट. यानी कि एक इरेक्ट शूट जो है, सपोज इफ दिस इज वन इरेक्ट शूट, ऑलराइट, नाउ दिस इज प्रोड्यूसिंग रनर एट दिस डायरेक्शन, it is producing runner at this direction, it is producing runner at this direction. In all the different direction it can produce the runners. Are you understanding? And that is why grasses जो है वो crisscross, मतलब grasses बहुत densely grow होते हैं. ये देखो, अब जितने भी डायरेक्शन से, सपोज मैंने grasses green से ड्रॉ करना है, ये देखो, ये वाले रनर पे grasses grow हो रहे हैं, ये वाले रनर पे ग्रासेस ग्रो हो रहे हैं, ये वाले रनर पे भी ग्रासेस ग्रो हो रहे हैं. तो अब आप देखो ग्रासेस कितना डेंसली ग्रोथ दिखाता है. नाउ यू अंडरस्टूड कि हम जब ग्रासेस के अंदर जाते हैं तो इतना वो डेंस क्यों होता है. द डेंस का रीजन है मेनी रनर्स आर क्रिस क्रॉसिंग विथ ईच अदर. ऑलराइट, तो जहां पे रनर्स के नोड्स बाजू बाजू में आ जाते हैं ना, व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर, वहां पे ग्रासेस ग्रो होते हैं एंड देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन, एंड दैट्स व्हाई ग्रासेस आर वेरी डेंसली ग्रोइंग प्लांट. Are you understanding? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. So there are number of arising from each erect shoot and they spread in a different direction. And each runner will bear new crowns above and tufts of adventitious root below. यानी कि leafy shoots, नए leafy shoots ऊपर grow होंगे and tufts यानी कि bunch of adventitious roots soil के below होंगे, soil के नीचे होंगे. Understood? Clear everyone? So the leafy shoot is called as crown, okay, and the bunch of roots which you are seeing at the bottom of the soil is tufts of adventitious root. Yes, Kiran? Can you explain crown again? Crown, Yes. for example, suppose ये runner है, ये nodal region है, these are adventitious root below which will hold this creeper in the position, the runner or the creeper in the position. और ये जो leafy shoot produce हो रहा है ना soil के ऊपर, directly leafy shoot. किरण, it is direct leafy shoot, there is no stem. देखो मैं stem नहीं draw कर रही हूँ, मैं leaves draw कर रही हूँ. Stem तो ये है ना, this is the stem जो horizontally soil के parallel grow हो रहा है. This is the roots, adventitious roots, and this is the leaves. ये लीफी शूट है, तो इस लीफी शूट को हम कहते हैं क्राउन. क्राउन ऑफ लीव्स. ओके किरण, आपने कोकोनट ट्री के टिप पे हम ऐसे
लीव्स देखते हैं, राइट, विच आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर डायरेक्शन लाइक. तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, इसको हम कहते हैं क्राउन. यानी कि द लीव्स, many leaves are originating from one point. Are you getting it, Kiran? Yes, miss. Many leaves are originating from one common point. तो ऐसे leaves को हम कहते हैं crown. So that we can differentiate with the other normal leaves उनके growth pattern से. मतलब normal किसी भी plant को अगर आप देखते हो किरण, तो देखो nodal region, ये nodal regions है, बराबर है. तो nodal region में से वो properly एक direction में grow है. ये देखो, राइट, या तो फिर ब्रांचेस होंगे, वो ब्रांचेस के नोडल रीजन में से ग्रो होंगे. तो इनको हम क्राउन नहीं कहेंगे. ईच दिस इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज लीफ. सो इनको हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? लीव्स, क्योंकि ये प्रॉपरली अपने नोडल रीजन में से ग्रो रहे, राइट. बट ये क्या है? ये एक कॉमन पॉइंट से ग्रो रहे. कॉमन पॉइंट से बहुत सारे लीव्स ऐसे स्प्रेड हो रहे हैं इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. सो इट लुक्स लाइक अ क्राउन टू द प्लांट एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्राउन. ओके, तो जब हम ग्रास को देखते हैं ऊपर से, ग्रीन पार्ट इज द क्राउन. हाँ, यस 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 यस. और कभी आपने ग्रास को प्लक करके देखा है क्या? मतलब उसको जमीन से उखाड़ के देखा है? यू विल गेट ओनली द लीव्स इन योर हैंड. उसका स्टेम तो नीचे है, रनर है. द मेन स्टेम इज रनर. अंडरस्टूड? Yes, miss. Thank you. Guys, did you understand the meaning of runners? Runners का रनर अंडरग्राउंड होते हैं क्या? नहीं. अरे बाप रे, तो सिर्फ ऊपर. ये देखो, सपोज ये ब्राउन लाइन मैंने सॉइल ड्रॉ किया है. ये देखो, ये सॉइल है. मोहम्मद, ये सॉइल है. उमार, ये देखो, ये सॉइल है. यस. ये बराबर सॉइल के ऊपर रहेंगे, हल्का सा सॉइल को टच करेंगे ताकि वो जहां पे नोड्स है वहां पे रूट्स प्रोड्यूस कर सके. बट वो सॉइल के ऊपर रहेंगे. यू कैन सी देम. जब आप उखाड़ोगे ना ग्रास को, आपको रनर भी साथ में मिलेगा. मतलब ऐसे रस्सी के माफिक आपको रनर मिलेंगे. Yes, miss. These are exactly parallel to the soil, just halka sa touching to the soil. That's it. Not inside the soil and not erect also. Okay, miss. Thank you. Yeah, if you can. main root कहाँ पे रहती है? Sorry. ये रनर्स की जो फिर हमें जो स्टेम दिख रहा है ना ग्रीन कलर की लाइन, इनकी मेन रूट्स कहाँ पे रहती है? बाबू, ये रूट्स है ना, देख, ये रूट्स है. These are the roots. तो वो ग्रास के रूट्स को ही उससे वो उसको भी. हाँ, या इसके स्टेम कहाँ से ग्रो होता है? नोडल रीजन में से. सपोज ये नया रनर ग्रो हुआ, लीफी शूट. मैं थोड़ा साइज छोटा दिखा रही हूँ क्योंकि ये नया है. न्यू क्राउन. दिस इज अ न्यू क्राउन. अब ये क्राउन बड़ा तो होगा ना फोटोसिंथेसिस करके. अब देखो, मैंने इसके आगे ड्रॉ किया है, रनर नहीं किया है. अब इसी नोड में से देयर विल बी अ ब्रांच और देयर विल बी अ स्टेम दैट विल अराइज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, और से इन दिस डायरेक्शन, और से इन दिस डायरेक्शन. अंडरस्टूड? सो ये नोड में से ही स्टेम अराइज होता है. अगर आप ये सोच रहे हो कि पहली बार ये रनर कैसे पैदा हुआ, पहली बार ये रनर कैसे फॉर्म हुआ, then you're forgetting one thing. Grasses do have flowers and they have seeds. Grasses के भी seeds होते हैं. So when the seed germinate ना, here जो इनके seeds होते हैं soil के अंदर जब germinate होते हैं ना, it produce roots. Of course it will produce proper roots. Okay? या तो ये seed में से root grow होंगे या फिर ये stem में से root grow होंगे. Vegetative propagation करेंगे. Getting it? Adventitious root है तो vegetative propagation करेंगे. तो जो सीड होता है, फर्स्ट इट विल प्रोड्यूस द रनर एंड द रनर के नोड्स के वहां से एडवेंटिशियस रूट प्रोड्यूस होता है. सो इट इज प्रोड्यूसिंग अ प्लिम्यूल व्हिच इज बेंडिंग टू द सॉइल. It is producing a plumule which is bending to the soil. It will bend towards the soil but not inside the soil, and that will give rise to the runner. Understood? Yes. मिस, एक न्यू क्राउन फॉर्म होने के लिए कितना टाइम लगता है? It's very fast. Trust me. एक बार अगर ग्रास ग्रो होना शुरू हो गया ना, ग्रासेस की ग्रोथ बहुत फास्ट होते हैं. दीज आर रनर्स, डिफरेंट डायरेक्शन में. उनको जगह चाहिए स्प्रेड होने के लिए. सो डिफरेंट डायरेक्शन में वो रन करते, मतलब यहाँ वहां फैलते. दे स्प्रेड एंड उनके नोड्स पे फटाफट ग्रासेस ग्रो होना शुरू हो जाता है. इसीलिए देखना उमर,
मोहम्मद इसलिए तुम नोटिस करना ग्रासेस जो है ना वो बेयर लैंड पे फटाफट कवर कर लेते हैं बिकॉज उनको सनलाइट डायरेक्टली मिलता है ना, दैट इज व्हाई। इनफैक्ट किसी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ग्रासेस ग्रो हो जाते हैं। जूनी पुरानी बिल्डिंग होती है जो बंद पड़ी हुई है वहां पे भी ग्रासेस ग्रो हो जाते हैं। मतलब उनको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, दे डोंट रिक्वायर, दे डोंट वांट दैट हर्डल। हर्डल यानी कि अगर रनर्स ग्रो हो रहे हैं और बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो ये रनर टर्न होके किसी दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे। हाँ सीरियसली ये उनकी खूबी है। इससे तो आपका क्रिकेट ग्राउंड को बराबर गोल सर्कल में हमने बनाया है। उसको सर्कल में बनाने का रीजन क्या है? सर्कल में हमने उसको कॉर्डन किया है विद द ब्रिक्स। ओके, जो नीचे अंदर की तरफ उसको फिर ऊपर की तरफ उसको कवर कर दिया है आपके क्रिकेट ग्राउंड को। एंड उसमें लॉन ग्रास प्रोड्यूस की है। लॉन ग्रास एंड द वाइल्ड ग्रास आर डिफरेंट इन साइज। लॉन ग्रास छोटे छोटे होते हैं एंड वाइल्ड ग्रास बड़े बड़े होते हैं। आर यू गेटिंग इट? और फिर जैसे वो लॉन ग्रास के साइजेस बड़े होना शुरू हो जाते हैं हम उसको ट्रिम करते हैं। और आपने तो वो देखा ही है क्रिकेट ग्राउंड को तैयारी कैसे करते हैं वो लोग, ट्रिम करते हैं उसको, गीला करते हैं ताकि वो सॉफ्ट रहे। दैट इज व्हाट रनर्स दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल हैबिट कि सपोज अगर कहीं पे भी उनको ऑब्स्टेकल मिला, सपोज अगर ये ऑब्स्टेकल है, ओके, सामने एक बड़ा सा वॉल है और रनर इसकी तरफ जा रहा है तो वो टर्न होके अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे but they will continue to grow and that's why they show a very dense growth. इसकी ना शीट मिलती है, समझ रहे हो मोहम्मद? ये देखो टर्न होके इतना क्लोज ग्रो होते हैं, फिर वापस टर्न होके फिर वापस क्लोज ग्रो होते हैं, तो इसकी शीट तैयार होती है और इसलिए लॉन ग्रास की शीट्स अवेलेबल होती है टू स्प्रेड ऑन दी फील्ड. Suppose if I am constructing a cricket ground, ना आई डोंट थिंक सो कि वहां पे लॉन ग्रास में फटाफट ग्रो कर पाऊं, तो मैं उसकी शीट्स बना, मतलब उसके शीट्स खरीद के मैं वहां पे स्प्रेड कर देती हूँ और वहां पे फिक्स कर देती हूँ ग्राउंड पे. सो रनर्स छोटे छोटे लॉन ग्रासेस के ना शीट्स बनाए जाते हैं. शीट्स यानी कि सॉइल का प्लेनार सरफेस ऐसे शीट पे डाल के, बड़े बड़े शीट्स पे डाल के उसके ऊपर लॉन ग्रास ग्रो करते हैं एंड फिर उसको प्रॉपरली थिकन कर देते हैं ताकि वो रोल होके हम लोग यूज कर सके. वी कैन रोल इट ओवर और वो सेपरेट भी नहीं होगा. Okay, miss. Thank you. You're welcome. So, miss, these are like the normal grass we find? Yeah. Okay. नॉर्मल ग्रास, जंगली ग्रास, वाइल्ड ग्रास बच्चा आप देखते हो ना यहाँ वहाँ ग्रो होते रहते. यस, आई होप आपने ये डायग्राम ले लिया हो बिकॉज दिस वाज एक्सप्लेनिंग यू वेरी नाइसली. रूट क्या है, स्टेम क्या है, रनर क्या है, लीफ क्या है, एवरीथिंग, राइट? ओके, नाउ सी द एग्जांपल्स गाइस. Examples are lawn grass, scientific name Cynodon dactylon, hydrocotyle, Centella asiatica, and oxalis. Okay, very very common examples. Very very common examples. My dear students, lawn grass. देखो, zoom करके देखो आप अपने स्क्रीन में. From a single node, oops. From a single node, you can see there are many runners which are producing. ये देखो ये रनर, काफी सारे शूट्स फिर ऊपर प्रोड्यूस होते हैं. ओके, एंड दिस इज सेंटेला एशियाटिका जिसको हम कहते हैं गोटू कोला. गोटू कोला, इट इज कॉल्ड गोटू कोला. ये देखो, सी गाइस, ये देखो इसका रनर and see at a distance where nodes are present it is producing leafy shoot above. ये प्लांट आपने देखा होगा, ये भी वाइल्ड कैटेगरी में आता है. जंगली प्लांट जो कहीं पे भी ग्रो हो जाते हैं. सेंटेला एशियाटिका, दिस इज वेरी कॉमनली ग्रोइंग. हिली ऐसे हिल्स होते हैं ना, हिल्स, वहां पे ये बहुत ग्रो होते हैं. हिली रीजन में जहां पे बारिश यानी कि पानी बहुत ज्यादा मिलता है वहां पे ये ग्रो होते हैं सेंटेला एशियाटिका. Very common these are plants. Okay, so one or more nodes, okay, one or more nodes, they bear scaly leaves and axillary bud, and this axillary bud will give rise to new crown. It will give rise to new crown. Scaly leaves क्या है? Scaly leaves यानी कि इसका covering. So the nodes have I mean the nodes, one or more nodes, मतलब बहुत सारी nodes, they bear scaly leaves. And these scaly leaves is an indication for us कि अब यहाँ से bud जो है वो sprout होने वाला है and it is going to produce a new crown. Everyone clear?
श्योर? Ma'am, do we have to remember the scientific names? Yeah, of course. Of course you have to remember. Okay, ma'am. जहां पे मैंने साइंटिफिक नेम दिया वहां पे याद रखना है, जहां पे मैंने नहीं दिया वहां पे मत रखो याद. Where I have specifically written, that means it is important. Subaerial stem stolen. Can I go to the stolen? Stolen. इधर मेरे हाथ को देखो, ये straight runner है. Okay, stolen will be like this. It will be slightly bent upward and then it will touch the ground जहां पे node है. It is a runner. Hello, it is a runner, but runner is slightly bent upward, bumpy. It is slightly bent upward, and then जहां पे node है ना वहां पे it will touch to the soil. So can we say it's arced at an angle like that? Yeah, I to say bumpy runner. Yeah. Okay. In a very simple language, I say bumpy runner. Bumpy यानी कि थोड़ा सा ऊपर raised है. ठीक है? ये देखो. See this. It is nicely raised above the soil. And जहां पे node है, there it will touch to the soil because it has to produce roots ताकि वो fix कर सके नए plant को, and leafy shoot बाहर निकलता है. Best example, strawberry. ये देखो ना नया stolen बाहर निकल रहा है. See, this is a new stolen which is produced from the terminal bud. See, the terminal bud is producing new stolen, and now this bud will go down, will touch to the soil, and then it will give rise to new leafy shoot. Understood? Another example, colocasia. कहां पर आता है colocasia? कॉम में. याद आ रहा है? अरबी. उसके leaves देखो, ये leaves भी हम लोग खाते हैं. आलू वड़ी बनाते हैं, आलू वड़ी. पात्रा, आलू वड़ी. This entire plant is useful for the food. इसका भी stolen ऊपर आता है ऐसे ground के ऊपर. Listen, these are slender lateral branches. ये देखो, ये lateral branches है. ये जो stolen है ना वो एक lateral branch है, which is arising from the base of the main axis. Main axis के base में से ये produce होता है. This is the main axis. ये जो है ना, this is the main axis. ये main axis के base में से ये produce होते हैं, and they will slightly grow upward. Slightly it will grow upward and then bend down. Okay, it will bend down and touch the soil. It will bend down and touch the soil, where its terminal bud will give rise to new shoot and new roots. Right? फिर ये जो shoot है, ये दिख रहा है आपको छोटा छोटा यहाँ पे shoot. Actually बच्चा लोग अगर आप zoom करोगे ना, ये देखो, इसका main stem ये है, ये देखो, और ये तो उसका leafy shoot है. ये जो पूरा ये leafy shoot है, which is called leaflets. ये stem है, तो ये stem का जो main axis है ना यहाँ पे, now this will produce a new stolen. How? उसका जो terminal bud है, that will grow further, will produce new stolen. Now this terminal bud will bend down to the soil and will produce roots and then again new leafy shoot. Understood? But every time, sorry. Main stem. So every time it is producing lateral branch which is going up, then touch down. Then again new is produced going up, then touch down. It's like bumpy. ऐसे bumpy time पे वो growth है. Best example, jasmine, mentha, strawberry, colocasia. Wow, beautiful. ये देखो कितना prominently stolen हमें ऊपर दिखाई दे रहा है. Can you see that? मोहम्मद, रनर इतना ऊपर नहीं होता. रनर सॉइल को टच करता है लेकिन अंदर नहीं रहता है. सॉइल को टच करता है, ये तो बहुत prominently ऊपर रहते हैं. And that's why they are green in color. It's not covered with scaly leaves. देखो मैंने कहीं पे भी scaly leaves mention किया, यानी कि brown color का covering है सब mention किया नहीं, क्योंकि ये proper ऊपर raised है. And so you will see always there green in color. See, and see how it is bending down. See
हाउ इट इज बेंडिंग डाउन एंड उसका जो टर्मिनल बड़े वो सॉइल को टच करके वहां पे लीफी शूट बना रहा है. सी दिस द न्यू लीफी शूट. Ma'am, which is bending down, that is the lateral branch. हाँ, and the lateral branch is called stolon. बराबर है. हाँ, yes. है ना? Are you understanding? मैम अगर क्वेश्चन है कि कोलोकेशिया कौन से पार्ट में आता है तो ऐसा स्टोलन ऐसे नहीं पूछते ऐसे नहीं पूछते. बस ये इमेज में जो बड़ा वाला है वो ओल्ड है, इसलिए बड़ा है कि जो मेन उसका रहता है बर्ड वो बड़ा रहता है, बाकी सब छोटे रहते हैं. नहीं समझा मैंने, वापस से बोलो इब्राहिम. ये इमेज में एक जो है वो मेन बड़ा वाला है, फिर उससे हम देखने की बहुत सारे छोटे छोटे आ रहे हैं. हाँ, तो बहुत जो सारे उसके तो जो टर्मिनल वगैरह रहते हैं जो बाद में आते हैं तो वो छोटे ही रहते हैं कि वो फर्स्ट वाला बड़ा हो गया है. वो भी बड़े होते हैं. यस. सो नाउ यू अंडरस्टूड कि मेन एक्सिस ये है, मेन स्टेम का एक्सिस ये बीच वाला है जो बड़ा है. एंड देखो वो कितने सारे ब्रांचेस प्रोड्यूस कर रहा है जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है. इब्राहिम दिख रहा है आपको? इसलिए मैंने स्पेशली ये इमेज लिया ताकि आपको मैं समझा सकूं कि देखो स्टोलन हर डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ है. यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, इस तरफ में प्रोड्यूस हुआ है, इस तरफ में प्रोड्यूस हुआ है, ये वाला प्रोड्यूस हुआ है, ये वाला प्रोड्यूस हुआ है. सी 5 तो स्टोलन्स इस मेन एक्सिस ने बना दी है जो अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस. वो स्ट्रॉबेरी वाला जो डायग्राम है उसमें स्केली लीव्स लिखा, मतलब स्केल लीफ लिखा है, सो वी आर सपोज्ड टू इग्नोर दैट. नहीं, स्केली लीफ मतलब द मोमेंट इट प्रोड्यूस द स्टोलन एंड जो नया लीफी शूट है जब वो ग्रो होता है उसके बाद तो जो पुराना स्टेम है वो तो थोड़ा सा ओल्ड होगा ना, तो उसके ऊपर आपको मतलब हल्का उस सा टाइम स्केली. पे. हाँ. ओके, नहीं तो फिर जो नया ऐसा आ रहा है that will be proper green in color. Okay, okay, thank you. Ma'am, comparatively to runners, they be developed. Do these develop as fast as them too? No. एंड इनका लेंथ भी मतलब उतना लंबा ग्रो नहीं होते जितना हम लोग ग्रास से एक्सपेक्टेशन करते ना, उतना नहीं. और इसलिए और हाँ, एक और बात, ग्रास और स्टोलन में ना मैंने पर्सनली मैंने एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस देखा है. व्हेन आई विजिटेड, ग्रास है ना प्रॉपर बेयर लैंड पे ग्रो हो सकते हैं, लेकिन इनको है ना ऐसा हीप चाहिए सॉइल का. आर यू लिसनिंग टू मी? यस मिस. सॉइल को ऐसे रो में अरेंज करते हैं. सॉइल का हीप जो होता है ना, छोटा छोटा हीप, उसको ऐसे रो में अरेंज करते हैं. आर यू गेटिंग इट? कैसे बताऊं? इस मतलब ऐसा पैरेलल लाइंस में. हाँ, पैरेलल लाइंस में, और पूरा सॉइल का ऐसा रो, ऐसा पार्ट बाय पार्ट में नहीं, पूरा सॉइल ऐसे रो में होता है और ऐसा हीप रहता है, छोटा माउंटेन शेप में वो बनाते हैं हम लोग, जैसा फार्मिंग के टाइम करते हैं. हाँ, फार्मिंग के टाइम पे. और वो जो ऐसा माउंटेन टाइप का रोज रहता है ना, उसके ऊपर ये स्ट्रॉबेरी के सीड्स डालते हैं ताकि वो ग्रो हो. एंड यस, स्ट्रॉबेरी इज अ डाइकॉट प्लांट. Ma'am, they have a very delicate connection with each other. या सॉइल के साथ ज्यादा डीप कनेक्शन नहीं होता इसका. डन. Subaerial stem offset. वाओ, प्लांट्स को देख के क्या लग रहा है? कहाँ पे रहते होंगे? पहले हैबिटेट बताओ, पहले प्लांट को आइडेंटिफाई करो. व्हाट डू यू थिंक? मशरूम. क्या मशरूम? कैसे मशरूम? आर वी डूइंग फंजाई और व्हाट? मैम ये वाटर प्लांट्स है. कैसे पता चला? मैम मैंने एक्चुअली पिस्टिया का पढ़ा हुआ ऑलरेडी, एंड द अदर पार्ट इज लाइक वो वाला फिगर, it kind of resembles to a lotus, kind of, it's not exactly that. And देखो I just assumed, guess था. Now, have you seen such type of roots to any soil plants? No. Soil plants properly. No, ma'am. ये roots देखो कितने छोटे-छोटे ऐसे thread जैसे structure है, and brown color के proper, and you can see this swollen petiole and spongy stem. इसको देखकर ही पता चल जाता है कि ये water plant है. Yes, these are aquatic runners. Runners of aquatic plants. काफी शॉर्ट है. हेलो, जो लैंड पे रनर्स ग्रो होते लंबे, ये वैसे नहीं ग्रो होते, शॉर्ट. मैंने जितना डायग्राम में दिखाया ना उतना ही. दैट्स इट.
शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, छोटे छोटे रनर्स। ज्यादा बड़े ग्रो हो भी नहीं सकते, बुद्धि दौड़ाओ। ज्यादा बड़े लेंथ में ग्रो होंगे, वेट बढ़ेगा, वेट इंक्रीज होगा तो नीचे डूब जाएंगे। हाँ, yes, so these are short and very thick and helps in vegetative propagation. एक मिनट बताती हूँ। thickness is not because of the storage of food. thicker इसलिए है क्योंकि ये जो ऑफसेट है ना, ये ऑफसेट में बहुत सारे एयर वैक्यूल्स होते हैं। inside the offset there are many air vacuoles, यानी कि inside की मतलब inside this horizontal stem, okay, the stem cells, stem के अंदर जो cells होते हैं, ओके, कॉर्टिकल सेल्स या उसके जो टिश्यूज होते हैं, उसके टिश्यूज में एयर वैक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं, एंड दीज एयर वैक्यूल्स विल हेल्प द प्लांट फॉर फ्लोटिंग इट फ्रीली ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। इट विल गिव द प्लांट buoyancy, ताकि वो प्लांट आराम से फ्लोट कर सके। आर यू गेटिंग इट? वो उसको वेट, उसका वेट हल्का कर देगा एयर वैक्यूल्स। ओके, बेस्ट एग्जांपल वाटर हाइसिंथ and pistia. Oh my god, look at this cute little offset, such a small offset, and look at this leafy shoot above, and look at this bunch of roots below. The man is holding a small plant of pistia. अभी हमें ये इतने बड़े क्यों दिखते पता है? क्योंकि ये बहुत डेंसली, मतलब बाजू बाजू में ग्रो होते हैं, इसलिए पूरा लेक हमें भरा हुआ दिखता है इससे। अब ये तो छोटा प्लांट उन्होंने हाथ में लिया हुआ है। Such a cute little offset. देखा, मतलब one offset will maximum have only 2 nodes. That's it. ज्यादा बड़े नहीं ग्रो होते हैं। Are you understanding? ये आइकॉर्निया है, जलकुंभी, जलकुंभी आइकॉर्निया, ब्यूटीफुल फ्लावर। ओके, एशिया का सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर आइकॉर्निया, जलकुंभी कहते हैं इसको। ओके, दिस इज, लुक एट द थिकनेस ऑफ द लीव्स, इट इज सच अ सक्यूलेंट लीव्स। अभी हम कहते हैं कि ये वाटर प्लांट है, हम कहते हैं कि ये एक्वाटिक फ्लोटिंग प्लांट्स है, मतलब इनको तो भरपूर पानी मिल रहा है, तो फिर इनको क्या प्रॉब्लम है? बट यू आर फॉरगेटिंग वन थिंग, टू मच ऑफ वाटर इज नॉट गुड फॉर द प्लांट। टू मच ऑफ वाटर विल बर्स्ट द प्लांट सेल्स। तो मतलब ये पानी के सरफेस पे ग्रो होने के बावजूद भी they have to restrict the water absorption. Listening? पानी के साथ they are growing on top of the water, but still they have to restrict the water absorption. They cannot absorb much of water, otherwise their weight will increase, turbidity increase होगा, their weight will increase, they will sink or else they will burst. So वो जो भी little amount of water absorb करते हैं, that is through root pockets, and yes, root pockets are present on hydrophytes. मैंने लिखा हुआ भी है डायग्राम में मैम। और इसलिए इनका स्टेम स्पॉन्जी, स्पॉन्जी तो एयर वैक्यूल्स की वजह से, एंड पिटियोल जो है ना वो स्वोलन इसलिए है बिकॉज दीज आर सक्यूलेंट, even though they are growing on a water surface, they have to store the water. मतलब पानी है लेकिन पानी ले नहीं सकते, जस्ट लाइक डेजर्ट। डेजर्ट में पानी नहीं है इसलिए पानी स्टोर करना पड़ता है, और इसलिए डेजर्ट प्लांट सक्यूलेंट्स है। इनके साथ भी वैसे ही हो रहा है, पानी है लेकिन एब्जॉर्ब भरपूर कर नहीं सकते, इसे जितना किया उसको स्टोर करके रखो, और इसलिए इनके लीव्स थोड़े से मोटे और सक्यूलेंट होते हैं। Isn't that beautiful? Trust me, यार। मैम, हाँ बोलो। मैम, these plants are fixed in the water or can No, they no, float around? no, no, no. और तुमको क्या लगता है ये ऐसे मछली की तरह तैर रहे होंगे, फ्लोट करते होंगे क्या? नहीं नहीं, फिक्स्ड नहीं कह सकते, और फ्रीली फ्लोटिंग कहते, बट दे आर नॉट स्प्रेडिंग और फ्लोटिंग एट अ वेरी ग्रेट डिस्टेंस। जब इनका प्रॉपर ग्रोथ हो जाता है किरण, तो फिर वो एक ही जगह पे रहना पसंद करते हैं, वो झुंड में ग्रो होते हैं। Miss, for example, if I push one of these plants a little bit, will they move or will Yeah, they of course. Yeah, you can move these plants easily. अपने हाथों से तुम मूव कर सकते हो। Yeah, Okay. you go to Powai Lake. Okay, go to Powai Lake. You will enjoy moving the Pistia and Eichhornia very much. क्योंकि अपना Powai Lake का जो पूरा margin area है, marginal water जो है पूरा, जो लेक का कॉर्डन पार्ट है, that is entirely covered with Pistia and Eichhornia. And now I think so 2020 से लेकर 2021 तक वहां पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हुई है, तो अब तो पूरा, मतलब मुझे ऐसा लगता है अब तो लेक कुछ ज्यादा ही भर गया होगा,
and that's why flamingos they prefer to come there. Last year आए थे ना flamingos बहुत सारे. Flamingos they love to live in the shallow water जहाँ पे ये water plants grow होता है. They get food from this water plant. Yes, they feed on these plants. Okay, nice. Understood everyone? हाँ बच्चा. Yes. Miss, in Eichhornia, there are some circular structures. ये वाले तुम बोल रहे हो? ये वाले? Yes. हाँ, these are swollen petiole. Petiole, leaf की डंडी जो swollen है. Okay. हाँ. इसका ऑफसेट जो रहता है वो अबव वाटर रहता है कि अंडर वाटर? क्या वापस बोलो. ये जो इसका ऑफसेट अबव वाटर रहता है कि अंडर वाटर? ऑफसेट अबव वाटर. अबव. ओनली रूट्स आर बिलो द वाटर. ऑफसेट तो ऊपर रहेगा. फ्लोट करेगा सरफेस. वाटर को टच करेगा वो वाटर के सरफेस को. वो फ्लावर्स यूज कर सकते हैं. तो हीर क्या बात कर रहे हो यार. ये फ्लावर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट. इट इज यूज्ड इन अ बुके. आइकॉर्निया फ्लावर्स आर मतलब हमारे जो एशिया के जो दूसरे पार्ट्स है ना कंट्री लाइक थाईलैंड एंड फुकेट एंड ऑल मतलब जो दूसरे एशियन कंट्रीज है ओके इंडोनेशिया एंड ऑल दे तो यूज दिस फ्लावर ड्यूरिंग देयर वेडिंग सीजन में तो उनको ये फ्लावर चाहिए ही चाहिए. आई मीन दे यूज इट इन अ रिलीजियस्टिक वे वैसा है. Okay. Yeah, and you know ना थाईलैंड इज हैविंग मोर ऑफ वाटर. लाइक थाईलैंड जो है उसमें मैक्सिमम वाटर प्लांट्स ज्यादा ग्रो होते हैं. एक्चुअली वो है ही आइलैंड ना. इट्स एन आइलैंड. तो पूरा आइलैंड पे वो सिटी बना हुआ है तो इसलिए वो लोग ये प्लांट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं. सब एरियल स्टेम सक्कर. अरे सुनो मैंने बम्पी बताया था याद है? Yes, miss. स्टोलन ये उसका ऑपोजिट है. लंपी ये बम्पी है. स्टोलन तो सक्कर लंपी है. बम्पी का ऑपोजिट लंपी. नहीं समझा? स्टोलन lateral root is growing up and touching the terminal bud to the soil, right, and producing roots and leafy shoot. बरोबर है. सक्कर में कैसा है? The lateral bud, I mean the terminal bud goes inside the soil, not much, ज्यादा डीप नहीं, हल्का सा नीचे जाता है सॉइल के नीचे. एंड जहां पे नोडल रीजन है वहां पर वो ऊपर आता है एंड प्रोड्यूस लीफी शूट एंड रूट्स. अंडरस्टूड? बस उसका ऑपोजिट है ये. So you can say that suckers are underground runner. बस इतना समझ लो. Suckers are underground runner. That means the runner is non-green. Obviously now it has to be a non-green because it is going inside the soil, not deep inside the soil. बच्चा लोग, not deep inside the soil. Only little part is going inside the soil. And जहाँ पे nodal region है, that part will come up above the soil and will produce green leaves and aerial shoot. Hence it is called as underground runner. Okay, मेरे लिए मैं बोलती हूँ lumpy. I call it as lumpy. Stolen bumpy है तो ये lumpy है. That's it. Chrysanthemum, mint. Pudina. Yeah, Pudina is grow. Pudina is a sucker. ये देखो पुदीना के प्लांट. ये देखो. See how the sucker is coming up. मतलब ये सॉइल में से निकाल के आपको दिखाया है. Sucker they will bend inside. और इसे देखो sucker का जो पार्ट है it is non-green. See this. These are all suckers. These are all sucker which are non-green in color. And they go slightly inside the soil. एंड जहां पे नोडल रीजन है वो रीजन ऊपर आके लीफी शूट प्रोड्यूस करता है. ओके, आई मीन प्रॉपर में एरियल शूट. ये देखो ये एरियल शूट है. लाइक देयर विल बी अ शॉर्ट स्टेम ओके एंड लीव्स व्हिच आर ग्रोइंग ऑन दैट स्टेम. छोटा सा स्टेम होता है और उसके ऊपर लीव्स ग्रो होते हैं. सो दीज आर वेरी स्मॉल हर्ब प्लांट्स. एंड जितने भी मतलब मैंने जहां तक नोटिस किया है ये रोजमेरी. आपने रोजमेरी सुना है? Hello, rosemary. How many of you are aware of rosemary? Yes. Rosemary, thyme, THYME, thyme.
मैम पिज्जा टॉपिंग्स में मोस्टली उसी सब को यूज करते हैं, जिसको तो कुकिंग को ज्यादा शौक है उसको पता होगा। मुझे तो, मेरे पास तो सारे हर्ब्स है। ओके, आई हैव ऑल द हर्ब्स। यू कैन ग्रो दीज हर्ब्स, यू कैन ग्रो दीज हर्ब्स इन योर हाउस। इट्स बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉल प्लांट्स एंड दे ग्रो लाइक अ सकर, दे हैव द सक्कर्स। जितने भी हर्बल प्लांट्स मैंने देखे हैं ना, जितने भी हर्बल प्लांट्स मैंने देखे हैं, मतलब मैंने जिसके बारे में स्टडी किया हुआ है, दे मोस्ट ऑफ देम दे ग्रो इन द फॉर्म ऑफ सकर। ओके, मतलब हल्का सा स्टेम नीचे जाता है एंड वहां से एरियल शूट, एरियल स्टेम एंड लीव्स बनाते हैं, एंड उनके लीव्स और स्टेम दोनों यूज होते हैं फॉर द फूड, लाइक टू गिव द फ्लेवर टू द फूड्स। दे आर अमेजिंग। ओके guys, sucker does not produce directly leafy shoot, it produces an aerial stem. ये देखो, it is producing a main axis, main stem, and the main stem is having leaves. दिख रहा है आपको? प्रॉपर पैटर्न में ग्रो हो रहे हैं लीव्स, ऐसे ग्रास की तरह रैंडमली नहीं ग्रो रहे, प्रॉपर पैटर्न में, प्रॉपर नोड्स पे से ग्रो रहे हैं। दैट मींस द मेन एक्सिस इज आल्सो हैविंग नोड्स जहां से लीव्स ग्रो होते हैं। आपने पुदीना का प्लांट तो लिया हुआ है ना मार्केट से, बंडल, तो वो बंडल क्या होता है? स्टेम विच हैज द लीव्स ना। हाँ, good. Everyone clear with the subaerial part? Yes, ma'am. Sure. subaerial stem आज कंप्लीट हुआ, अभी एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन बाकी, जो हम लोग कल करेंगे। आई थिंक टाइम हो चुका है। Did you see आज आपको 2 बार लॉगिन नहीं करना पड़ा, क्योंकि कल रात को मैंने जूम खरीद लिया। मैं बहुत खुश थी। Yesterday night I was dancing, ये मेरे को जूम मिल गया, I got the license. My mom is saying कि हे भगवान, ये इतने के लिए भी खुश होती। बोली मम्मा then what, recording becomes so smoothly, मेरे बच्चा लोग को बार बार ज्वाइन नहीं करना पड़ता है। It is good. बोलो। Ma'am, is mentha and mint same? No, मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा। मिंट इज पुदीना एंड मेंथा इज द वन जिसमें से हम अल्कलॉइड यूज करते फॉर एडिंग, it produce an alkaloid, it produce a secondary metabolite which gives a cooling effect to our scalp, to our body, cooling effect। यानी कि मेंथा is producing an alcoholic substance, alkaloid, which is called menthol, and that menthol is added in the shampoos and all, which gives a cooling effect to our scalp, to our head। तो वो मेंथा अलग हो जाता है। मेंथा is not used for eating purpose, मेंथा is also added in the chewing gums and all। मेंथॉल जो आपको थोड़ा सा कूलिंग और फ्रेशनेस देता है माउथ में, बट उसका अल्कलॉइड एक्सट्रैक्ट करके डाला जाता है। वो प्लांट हम लोग डायरेक्टली खाते नहीं है। ओके मैम। Yes. और मिंट जो है वो तो पुदीना है, वो तो आपने देखा ही होगा सिमरन मार्केट में। मैम, यस किरण, मैंने वो कैक्टस का फोटो लिया, आपको सेंड करूँ मैं? कौन से चैप्टर्स का? कैक्टस का फोटो? हाँ, वो जो बड़ा सा स्टेम आ रहा है उसके ऊपर से वो। या श्योर, यू प्लीज सेंड मी इन द व्हाट्सएप। ओके गाइस, सो आई होप आप लोग को एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया हो, राइट? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, miss. ओके, कल फ्राइडे है, कल एक और डीपीपी बेचती हूँ रूट का, प्रैक्टिस कर लो ताकि सैटरडे को हम उसके ऊपर डिस्कशन करें। कल फ्राइडे है तो कल मैं डीपीपी शाम को डालूंगी। मैम कल हमारा बोर्ड लेक्चर्स होगा या फिर आपका नॉर्मल लेक्चर्स होगा, या फिर हम लोग सिर्फ मतलब नोट्स कलेक्ट करने वाले हैं? बिकॉज कल का आया नहीं है हमारा स्केड्यूल, तो अब बोला था कि हमारा बोर्ड के लिए लेक्चर्स होगा, लाइक सारे ये लाइक ऑल द थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस एंड ऑल, लाइक नॉट द एमसीक्यूज ऑब्वियसली, वो सब पढ़ाएंगे। तो कल का स्केड्यूल तो आया नहीं है, तो वही पूछ रही थी। अच्छा ओके, नहीं कल का आ जाएगा आपको स्केड्यूल, और जो भी रहेगा लेक्चर्स, बोर्ड लेक्चर या नीट लेक्चर, दैट विल बी मेंशन टू यू। ओके, डोंट वरी। यस, आपको क्या लगता है कोमल, अभी हमने जो पढ़ा, एवरीवन, अभी हमने जो पढ़ा आज रूट का और स्टेम का जो भी, इज इट फॉर नीट ओनली? नहीं मैम, यही सेम पोर्शन रहेगा हमारे बोर्ड्स में भी, मतलब जो यही बोर्ड्स भी है गाइस, यही बोर्ड्स भी है। अब इसमें जो एडिशनल है वो नीट के लिए जाता है, और जो बोर्ड्स के लिए वो बोर्ड्स के लिए, खत्म। आपको वो डिफरेंशिएट कर देना है, खत्म ना। यू आर स्टेट बोर्ड ना, यू ऑल आर स्टेट बोर्ड राइट, मतलब आप लोग एचएससी एग्जाम दोगे,
Yes or no? Yes, ma'am. You are Yes, you have miss. joined an integrated ma'am. course, right? You have joined an integrated course. So आप HSC एग्जाम दोगे तो 11th की टेक्स्ट बुक की PDF अवेलेबल है. अगर आपको बाहर जाने नहीं मिल रहा है, 11th की टेक्स्ट बुक की PDF अवेलेबल है. You can download that PDF, okay? And if you don't have, मैं भेज देती हूँ. मेरे पास 11th का स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक का PDF है. I will send it to you. उसमें मॉर्फोलॉजी का चैप्टर ओपन करो एंड उसमें देखो मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, जो मैंने सारा कुछ पढ़ा है वो सब है. अब जो एडिशनल है वो आपको याद रखना है कि ये एडिशनल नीट के लिए है और बाकी सब बोर्ड के लिए भी है. फॉर बायो देयर इज नो डिफरेंस इन बोर्ड एंड नीट. सब कुछ एक ही साथ होगा. इसलिए मैंने बोला कि मेरा अलग से बोर्ड लेक्चर मतलब, हाँ आपके साथ बोर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर जरूर किया जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर, बट जो मैं पढ़ा रही हूं इट इज बोर्ड एंड नीट बोथ. इट विल नॉट बी सेग्रीगेटेड. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. मैं आपको मेरी तरफ से बता रही हूँ. ओके चलो बाय ऑल, टेक केयर. चलिए मैं आज 11th का बोर्ड का टेक्स्ट बुक सेंड कर देती हूँ. बाय मैम, थैंक यू. बाय. यस इब्राहिम. Bye, ma'am. I miss. Thank you, miss. Bye bye. See you. Take care.